In this class, we are going to study about the eubacteria and its categories. So in our previous class, we had studied that bacteria consist of, or the Monera consists of two categories, and one was Archaebacteria, which we had studied in our previous class, and in this class, we are going to study about eubacteria. So we have already seen that eubacteria consist of various categories of microorganisms, and these are bacteria or the mollicutes or the spirochetes or the chlamydia or the cyanobacteria. So these are some of the categories which come under eubacteria. So first of all, we are going to start with the first category of eubacteria, and that is the bacteria. So this is the most commonly known forms along with cyanobacteria also. So we are going to start from this bacteria, and first we are going to study how these were discovered, who were the discoverers, and what are their different shapes or sizes or forms in which they occur in nature. So first of all, the first observation of the bacteria was done by Leeuwenhoek back in 1676. So Leeuwenhoek thought that these were small animals, so he named them animalcules. So it means that when Leeuwenhoek observed first bacteria back in 1676 in rainy water and also in teeth scum. So the material that comes out after scraping of teeth, यानी कि दांत को जब हम लोग स्क्रैच करते हैं तो जो मटेरियल बाहर आता है, that is called as teeth scum. तो रेन वाटर जो कि स्टोर्ड था, फ्रेश रेन वाटर नहीं, बट ही ऑब्जर्व बैक्टीरिया इन स्टोर्ड रेन वाटर एंड ऑल्सो इन टीथ स्कम. तो जब लीवेनहॉक ने देखा कि कोई एक सर्टेन ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व किया अपने माइक्रोस्कोप से, तो उन्हें लगा कि ये छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, तो उन्होंने इसका नाम रखा एनिमलक्यूल्स. सो दैट मीन्स टाइनी एनिमल्स, क्योंकि ये इतने छोटे थे कि आप इसे नेकेड आई से नहीं देख सकते हो. सो दैट इज व्हाई ही नेम्ड देम एनिमलक्यूल्स. तो इसका मतलब होता है टाइनी एनिमल्स. So Leeuwenhoek is credited for the discovery of bacteria because he was the one who first observed bacteria first in rainwater and then in teeth scum. So he is credited for the discovery of bacteria. But the term bacteria or the name bacteria was not given by Leeuwenhoek. It was given by Ehrenberg. So the term or the name bacteria that we study, it was given by Ehrenberg. And the father of bacteriology, that is, bacteriology means study of physiology, the functions or the types of bacteria and everything relating to bacteria, their study is called as bacteriology. So the scientist who is regarded as the father of bacteriology is Robert Koch. So these are the three scientists which we have to remember in this case, that is Leeuwenhoek, Ehrenberg and Robert Koch. So discoverer is Leeuwenhoek. The term bacteria was given by Ehrenberg, and also the father of bacteriology, that is Robert Koch. So these are the three scientists which we have to remember in this case. So now first of all, we are going to study the different shapes or different types of shapes of bacteria. So the first type of bacteria that we have to study is the bacilli or the bacillus type. That is, it is rod shape, it is solid rod shaped structure. तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं बैसिलस वाले कैटेगरी में, ये रॉड्स की तरह होते हैं, समवॉट लाइक दिस. सो देयर आर माइनर वेरिएशंस आल्सो इन दिस. कुछ हल्के से इसमें से डिफरेंट भी हो सकते हैं, लाइक दिस. सो ऐसे भी हो सकते हैं कुछ बैक्टीरिया, बट नॉर्मली वी कंसिडर देम एज रॉड शेप. तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं चार्ट फॉर्म में पाए जाते हैं, तो इनमें अकेले भी रह सकते हैं, तो कह सकते हैं उन्हें सिंगल बैसिलस लाइक दिस. अगर ये पेयर्स में है तो उन्हें हम बोलेंगे डिप्लोबैसिली, दैट इज दो पेयर में, यहाँ पे दो के पेयर में रह रहे हैं ये, और चार एक के ऊपर एक लेयर बना के भी रह सकते हैं, जस्ट लाइक दिस. यानी कि ये पे जो एक एक बैसिलस हैं वो एक दूसरे पर लेयर बना के रह रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं पैलिसेड. और जब बहुत सारे बैसिलस एक चेन बनाते हैं, एक चेन में अक्कर होते हैं, एक चेन में वो एग्जिस्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं स्ट्रेप्टोबैसिली. उसके बाद जो ये रॉड शेप्ड टाइप है, उनके अलावा और भी टाइप के शेप हैं. फॉर एग्जांपल द स्फेरिकल वंस या ओवल वंस, तो उन्हें हम कहते हैं कॉकस. यानी कि यहाँ पर दो टाइप के शेप हैं कॉकस में, स्फेरिकल और ओवल.
तो स्फेरिकल भी हो सकते हैं, ये ओवल भी हो सकते हैं। तो जस्ट लाइक वहां पर अकेले और पेयर में थे, यहाँ पर भी हो सकते हैं। तो अगर कॉकस बैक्टीरिया अकेले होगा तो इट विल बी कॉल्ड एज मोनोकॉकस, अगर 2 के पेयर में होगा तो उसे कहेंगे डिप्लोकॉकस, अगर वो चेन में होगा तो उसे कहेंगे स्ट्रेप्टोकॉकस, अगर वो 4 के ग्रुप में होगा तो टेट्राकॉकस। और एक इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सार्सिना, दिस वन। तो ये जो बैक्टीरिया होता है ये 3D ज्योमेट्रिकल फॉर्म करता है, शेप जैसा स्ट्रक्चर, यानी कि नॉर्मली 3D में और भी टाइप्स हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन टाइप ये फॉर्म करता है वो क्यूब की तरह दिखता है। सो द रेड वंस व्हिच आई हैव ड्रॉन हियर, दीज आर द बैक्टीरिया और ये क्यूब के फॉर्म में होते हैं विच वी नॉर्मली ऑब्जर्व। तो इस तरह के क्यूबिकल फॉर्म को हम कहते हैं सार्सिना। उसके अलावा स्ट्रेप्टोकॉकस यानी कि वो चेन्स में होते हैं जस्ट लाइक दिस। और अगर ग्रेप के क्लस्टर जैसे अंगूर के गुच्छे होते हैं तो अगर ये क्लस्टर में पाए जाएंगे तो उन्हें हम कहते हैं स्टेफाइलोकॉकस। तो स्टेफाइलोकॉकस में नंबर ऑफ बैक्टीरिया कोई फिक्स्ड नहीं होते हैं, तो ये छोटे क्लस्टर भी हो सकते हैं, बड़े क्लस्टर भी हो सकते हैं। तो ये नॉर्मल 2 टाइप के शेप होते हैं। इसके अलावा और भी टाइप के शेप हो सकते हैं, जैसे कि विब्रियो हो सकता है या फिर स्पाइरलम टाइप का हो सकता है, विच वी आर गोना स्टडी नाउ। सो दीज आर द फर्स्ट 2 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स, or we can also say that they on the basis of their occurrence in singly or pairs or in chain or in groups. So यहाँ पर हमने 2 शेप का पढ़ा है, रॉड शेप और स्फेरिकल या ओवल शेप। अब हम पढ़ेंगे स्पाइरल या फिर पढ़ेंगे विब्रियो शेप के बैक्टीरिया को। नाउ वी वुड स्टडी अबाउट सम अदर टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप्स। So one another such bacteria is the spirillum type. So it is just as the name suggests, it is spiral a bit. So it is spiral but rigid and it does not have an axial filament like in this case. So we'll study what axial filament is later. So first of all, what we have to study about this spirillum is that it consists of 1 to 3 turns. That there could be 1 turn, 2 turn or maybe even more turn. बट दिस इज रिजिड, यानी कि ये जो स्पाइरलम बैक्टीरिया है इसका शेप चेंज नहीं करता है बिकॉज इट इज वेरी मच रिजिड शेप स्ट्रक्चर। लेकिन इसी से मिलता जुलता होता है स्पाइरोकीट्स। तो स्पाइरोकीट्स का बॉडी में बहुत ज्यादा टर्न्स होता है, लाइक यू कैन सी ओवर हियर देयर आर लॉट्स ऑफ टर्न्स इन द बॉडी ऑफ अ स्पाइरोकीट, बट in the body of the spirochete the body has an axial filament and also the body of the spirochete is flexible, not rigid like this spirillum. So this spirillum is long, helical and rigid consisting of 1 to 3 curves, but this is longer as compared to spirillum but it is flexible also. और यहाँ पर ये जो एक्सियल फिलामेंट है, इस एक्सियल फिलामेंट को हम एंडोफ्लैजेला भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी कि इट हैज फ्लैजेला एंड द फंक्शन ऑफ अ फ्लैजेला इज टू मूव द सेल। ये सेल को मूवमेंट करने में हेल्प करता है। इट इज लाइक द लेग्स ऑफ ह्यूमंस, जैसे हमारे पैर होते हैं मूवमेंट के लिए, इनके पास फ्लैजेला होता है मूवमेंट के लिए। तो ये फ्लैजेला जनरली बॉडी से बाहर की तरफ होते हैं, लेकिन यहाँ पर स्पाइरोकीट्स के केस में ये अंदर की ओर टाइप का एक फ्लैजेला होता है और इसे हम कहते हैं एंडोफ्लैजेला या इसे हम एक्सियल स्केलेट फिलामेंट भी कहते हैं। तो जब एक्सियल फिलामेंट जब रोटेट करता है तो उससे इस पूरे स्पाइरोकीट का बॉडी मूव कर सकता है। तो इस एक्सियल फिलामेंट को हम नॉर्मली एंडोफ्लैजेला भी कह सकते हैं। सो ये एक्सियल फिलामेंट स्पाइरलम में एब्सेंट होता है और स्पाइरोकीट्स में प्रेजेंट होता है। ये रिजिड है, ये फ्लेक्सिबल है, ये लॉन्ग है, लेकिन ये काफी ज्यादा उससे कंपैरेटिवली लंबा होता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। नाउ वी हैव वन अनदर व्हिच इज कॉल्ड एज विब्रियो। तो विब्रियो का शेप होता है कॉमा की तरह। तो एज यू कैन सी इट, ये कॉमा की तरह शेप्ड है। तो विब्रियो में जनरली फ्लैजेला भी पाए जाते हैं, दैट इज वन एंड पर फ्लैजेला पाए जाते हैं। उसके अलावा अब आते हैं माइसीलियल के केस में। तो माइसीलियल में हमें इंपॉर्टेंट है कुछ चीजों को जानना। ब्रांच्ड, एसेप्टेट, फिलामेंटस, ये 3 वर्ड है जो हमें इंपॉर्टेंट है। तो पहले वर्ड को समझते हैं, दैट इज द ब्रांच। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किसी भी पार्ट से कम 2 ब्रांचेस निकले हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस पार्ट से बात करें तो एक ब्रांच, दूसरा ब्रांच, फिर इस पार्ट से एक ब्रांच, दूसरा ब्रांच, फिर यहाँ से भी ब्रांच निकल रहा है, यहाँ से भी ब्रांच निकल रहा है।
और यहाँ पर जो एसेप्टेट है इसका मतलब है कि बीच में वॉल्स कॉमन नहीं है, यानी कि यहाँ पर बीच में जो सेल्स के बीच का सेपरेशन होता है वो नहीं पाया जा रहा है, यानी कि मल्टी न्यूक्लिएट स्टेज हो गया ये, क्योंकि एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म से सेपरेटेड नहीं है। यही मतलब होता है एसेप्टेट का, मतलब यहाँ पर सेल्स के बीच में पार्टीशनिंग नहीं है। तो एक सेल के बीच में और दूसरे सेल के बीच में अगर पार्टीशनिंग नहीं होगा तो दोनों के साइटोप्लाज्म या जो भी उसका सेलुलर मटेरियल है वो एक दूसरे से मिंगल हो सकता है, इसी को कहते हैं एसेप्टेट। अब तीसरा है फिलामेंटस। तो इसका अगर हम एक स्ट्रैंड को निकालें तो वो फिलामेंट की तरह होता है। सो इसका जो बॉडी है ब्रांच्ड है, फिलामेंटस है और एसेप्टेट है। तो एसेप्टेट का मतलब सेल्स के बीच में कॉमन वॉल्स नहीं है यहाँ पर। उसके अलावा हम स्टॉक्ड बैक्टीरिया की बात कर सकते हैं। तो स्टॉक्ड बैक्टीरिया में भी जनरली फ्लैजेलम पाए जाते हैं, इस एंड पर भी जनरली फ्लैजेलम पाए जाते हैं। और ये जो स्टॉक है एक साइड पर ये पाया जाता है, तो इसीलिए इस तरह के बैक्टीरिया को हम कहते हैं स्टॉक्ड बैक्टीरिया। सो इनका अदर रोल आता है डिवीजन में, विच वी विल स्टडी लेटर। बट हमें एक और टाइप के बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है एंड दैट इज द बडेड बैक्टीरिया और द बडिंग बैक्टीरिया। तो बडिंग हम प्रोटिस्टा के भी केस में पढ़ेंगे और बडिंग हम फंजाई के भी केस में पढ़ेंगे, क्योंकि फंजाई में भी बडिंग होते हैं जैसे कि यीस्ट में। तो यहाँ पर जो सबसे पहला बडिंग हम पढ़ रहे हैं वो है बैक्टीरिया में। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक पेरेंट बॉडी से छोटे छोटे बर्ड्स निकल रहे हैं और ये जो बर्ड्स होने वाले हैं इसके ऑफस्प्रिंग्स होंगे, यानी कि ये जो होंगे आगे चल के न्यू बैक्टीरिया फॉर्म करेंगे। तो ये पेरेंट हो गया और ये उस पर निकलने वाले बर्ड्स अल्टीमेटली क्या फॉर्म करेंगे, तो यहाँ पर निकलने वाले जो बर्ड्स हैं इनमें काफी हद तक स्टार्टिंग में ये पेरेंट पे डिपेंडेंट होते हैं और आगे चल के वो क्या करेंगे, ऑफस्प्रिंग बनाएंगे इसी बैक्टीरिया का। तो ये 5 और टाइप का बैक्टीरिया था जो हमने अभी जस्ट पढ़ा था, 2 और हमने पढ़ा था और यहाँ पर हम 5 और 6 और टाइप की बैक्टीरिया को पढ़ लिए। सो ये कॉमन बैक्टीरिया के शेप्स पाए जाते हैं। नॉर्मली हमें हमारे सिलेबस में इतने ही टाइप्स के बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है और इतने ही टाइप के शेप्स वाले बैक्टीरिया हमें नॉर्मली जानना भी है। अब तो ये बात हुई बैक्टीरिया के शेप या उनके फॉर्म के बेसिस पर ना, कि उसका शेप कैसा है, उसका फॉर्म कैसा है, ब्रांच्ड है या स्टॉक्ड है या बडेड है या स्पाइरल है या विब्रियो शेप का है या स्पाइरोकीट का है। तो यहाँ पे तो हमने उसके शेप की बात की। अब हम बैक्टीरिया के फ्लैजेला की बात करेंगे। तो फ्लैजेला बेसिकली एक तरह का मोटिलिटी वाला ऑर्गन होता है। सो यहाँ पर हम फ्लैजेला के बेसिस पे अगर बात करें तो सबसे पहले ये जानना है कि फ्लैजेला होता क्या है। तो फ्लैजेला बेसिकली बैक्टीरिया के लिए या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए मूव करने का ऑर्गन होता है। ये नॉर्मली हायर ऑर्गेनिजम्स में मेल सेक्सुअल में भी पाए जा सकते हैं, लेकिन नॉर्मली लोअर ऑर्गेनिजम्स में ये जो फ्लैजेला हैं बॉडी को मूव कराने में हेल्प करते हैं। इट इज लाइक द लेग्स ऑफ ह्यूमंस। तो फ्लैजेला के बेसिस पर हम बैक्टीरिया को कुछ सर्टेन कैटेगरी में बांटते हैं, जैसे कि ए ट्राइकस। ए ट्राइकस में फ्लैजेला होता ही नहीं है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे कोई फ्लैजेला नहीं है। तो उसका एक एग्जांपल है माइक्रोकोकस। अब नॉर्मली कहीं कहीं पर बैक्टीरिया के एक एंड पर एक फ्लैजेला होता है और हमने देखा था विब्रियो के केस में ऊपर ही, तो उस तरह के बोलते हैं मोनोट्राइकस। तो वैसी बैक्टीरिया को हम कहते हैं मोनोट्राइकस, वहां एक फ्लैजेला है और सेल के एक एंड पर पाया जा रहा है। उसके बाद वाला है कैटेगरी एम्फीट्राइकस, यानी कि यहाँ पर एक एंड पर था, यहाँ पर दोनों एंड पर है। दैट इज उसका एक एग्जांपल है नाइट्रोजोमोनास। तो यहाँ पर जो फ्लैजेला है बैक्टीरिया के दोनों एंड्स पर पाए जा रहे हैं। दोनों एंड्स भी बोल सकते हैं या दोनों पोल्स भी बोल सकते हैं। उसके बाद आता है लोफोट्राइकस। तो यहाँ पर भी दोनों एंड पर फ्लैजेलम है, लेकिन दोनों एंड पर टफ्ट है, गुच्छे में है, बहुत सारे फ्लैजेला पाए जा रहे हैं। तो दोनों एंड पर बहुत सारे फ्लैजेला पाए जा रहे हैं, यहाँ पर दोनों एंड पर सिंगल सिंगल फ्लैजेला था। तो ये दोनों का डिफरेंस आ गया। इसका एक कॉमन एग्जांपल है साल्मोनेला। अब यहाँ पर अगर हम बात करें सेफेलोट्राइकस की, तो सेफेलोट्राइकस में एक ही एंड पर फ्लैजेला पाया जाएगा। यहाँ पर दोनों एंड पर फ्लैजेला नहीं पाया जा रहा है, लेकिन एक ही एंड पे बहुत सारा फ्लैजेला है, एक दो नहीं बहुत सारा फ्लैजेला है। उसके बाद आता है पेरीट्राइकस।
तो पेरिट्राइकस में पूरे बॉडी पर ही फ्लैजेला है, यानी कि इस तरीके से बैक्टीरिया के पूरे बॉडी पर ही फ्लैजेला पाया जाता है। तो इसका एग्जांपल है साल्मोनेला टाइफी या इकोलाई, और ये जो इकोलाई का बैक्टीरिया है दैट इज कॉल्ड एज एशेरिकिया कोलाई। तो हमारे पूरे जेनेटिक्स वाले चैप्टर में सबसे ज़्यादा किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है, सबसे ज़्यादा बार जो हम लोग को एक्सपेरिमेंट्स पढ़ने हैं वो इसी इकोलाई बैक्टीरिया पर हैं, क्योंकि ये हमारे ह्यूमंस में भी रहते हैं, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर। तो इकोलाई कई बार कई चैप्टर में कई जगहों पर एग्जाम्पल में आने वाले हैं, बार बार एग्जाम्पल में आएंगे। एंड लाइकवाइज जो सेफेलोट्राइकस का एग्जाम्पल है वो है कोरिनी बैक्टीरियम। तो कोरिनी बैक्टीरियम की वजह से कुछ बीमारी भी होते हैं जो हम लोग पढ़ेंगे, जिसे हम कहते हैं डिफ्थीरिया। तो वो सारी बीमारी हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अभी कोरिनी बैक्टीरियम एक सेफेलोट्राइकस का एक एग्जाम्पल है। तो अभी हमने बैक्टीरिया के बारे में दो चीज जाना है। पहला कि उसके शेप के बेसिस पे कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा बैसिलस या फिर कॉकस, फिर स्पाइरलम या स्पाइरोकीट्स, विब्रियो। उसके अलावा दो और टाइप हैं जैसे कि माइसीलिया स्टॉक्ड और बडेड। और फ्लैजेला के बेसिस पर लगभग 6 टाइप हैं, एट्राइकस, एम्फीट्राइकस, पेरिट्राइकस, मोनोट्राइकस, सेफेलोट्राइकस, पेरिट्राइकस। तो इतने टाइप के हमें फ्लैजेला के बेसिस पर टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया पढ़ने हैं। तो इसके अलावा और भी चीजें हमें इसमें जाननी है, जैसे कि ग्राम स्टेनिंग। तो बैक्टीरिया के बारे में, इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना है कि ग्राम स्टेनिंग क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होता है। सो दैट इज व्हाट वी आर गोना स्टडी नाउ